Shri Markandeya Singh and Srimati Lakshmi Devi were blessed with a son 71 years back in Lucknow, Uttar Pradesh. As he grew up, he did his master's in 1972, after which he relentlessly prepared for Indian civil services and was selected in the Indian Police Services, fondly known as IPS, in the year 1974. From being deputed as the Assistant President, Superintendent of Police at Mirzapur to ADC to Governor of UP, he was selected as the Superintendent of Police, Agra and Hamirpur. Also, he was the Senior Superintendent of Police at Etah, Nainital, Agra and Kanpur for 10 years. He was appointed as the Deputy Inspector General of Moradabad and Meerut Range for 6 years. He joined as the Inspector General of Meerut Zone in 1996. He was then assigned a challenging job of a special task force and was responsible for establishing similar units in 3 other states. He rose to become the Additional Director General of Law and Order, Crime, STF, Interstate Border Force, and CISF. As the Director General of Police of Uttar Pradesh, he served this state for 2 years and became the DG of Home Guards before retiring. While rising in leaps and bounds, he managed to complete his doctoral thesis as well. For his distinguished services to the nation, he has been decorated with President's Police Medal for Gallantry with a bar to it. He also received Indian Police Medal for Gallantry. He was decorated with President's Police Medal for his distinguished services, Indian Police Medal for long and meritorious services, Kathin Seva Medal, and a bar to Kathin Seva Medal. His name has been mentioned in Limca Book of Records as the most highly decorated police officer in India. Apart from these awards, he has been awarded NRI Award and Akhil Bharat Vidwat Parishad Award in 2015 by Honorable Shri Rajnath Singh, the then Home Minister of India. I am exhilarated to present before you the chief guest of today's function, the Pro-Chancellor of Noida International University, Dr. Vikram Singh. Welcome, sir. Namaskar. Namaskar. Vijaya ji, thank you so much for the very kind, elaborate and lucid introduction. I am overwhelmed by your kindness. With your permission, I would condense my address because I think we are running late. So I will condense my address to you by 50%. But I will not condense the content by any percent. The content will be 200%, but the time spent will be 50%. I'm amazed and thrilled to be in the company of very great intellectuals. I must compliment S.M. Patel College of Home Science, Vallabh Vidyanagar, and what the Honorable Principal, Dr. Bhavna Chauhan ji mentioned about this college and this place. I think I make a resolve and a strong resolve to visit your college and this august place, because it will not be a visit, it will be a pilgrimage. मेरे लिए तीर्थ यात्रा होगी. आप सबके चरणों का वंदन करेंगे, मैं धन्य होऊंगा, मेरा अहोभाग्य होगा. एक बुजुर्ग होने के नाते मैं आपसे जो बातें कहूंगा हो सकता है कि आपको कटु लगे, लेकिन मेरा काम मीठी मीठी बातें करना भी नहीं है. सब बातें कड़वी नहीं होंगी, कड़वी भी होंगी, मीठी भी होंगी. जो अच्छी लगे ले लीजिएगा, जो नहीं अच्छी लगे तो समझ लीजिएगा कोई बूढ़ा आया जिसकी मेंटल फैकल्टीज थोड़ी ढीवी पड़ गई हैं, अनर्गत प्रलाप करके चला गया. मेरी आयु पे जो कुछ हम लोग कहते हैं उसको कहते हैं डाइंग डिक्लेरेशन. क्योंकि मैं अपनी जीवन यात्रा समाप्त करके वेटिंग लाउंज में बैठा हूं. कब ट्रेन आ जाए, कब फ्लाइट आ जाए पता नहीं. इसलिए मैं जो भी कहूंगा निर्भीक होकर कहूंगा, आपके हक के लिए कहूंगा, जो आपके लिए अच्छा होगा वही कहूंगा. परम सम्मानित डॉक्टर S.G. पटेल साहब,
respected Dr. Bhavna Chauhan, Principal Ma'am, respected Miss Kalpana Sharma ji, Dr. Indu Subhash ji, my dear son Ram Kumar Sharma ji, Bharat ki shaan and icon Mrs. Sheetal Sharma ji. I begin with a quote from Swami Vivekananda. India's heritage is rooted to the past. भारत का भविष्य उसकी आधारशिला अतीत के उज्जवल और उसकी सात्विकता में। माता पिता बुजुर्गवार वो धरोहर हैं। हमारा पुश्त बहुत ही खुशकिस्मत था कि माता पिता की लोरियों में गाडगे महाराज, संत ज्ञानेश्वर, छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानियों में पला बढ़ा। श्री हनुमान जी की कर्मयोग और उनकी ब्रह्मचर्य के बारे में आगे बढ़ा। भगवान राम की जो रामचरितमानस थी और गीता पाठ। आज प्रिंसिपल मैम, जब मैं कहीं किसी कॉलेज में जाता हूं तो किसी बच्चे से मैं सुनना चाहता हूं कि जो बच्चा मुझे भगवत गीता के 10 श्लोक सुना देगा या रामचरितमानस की 10 चौपाई, मैं 50,000 रुपए इनाम दूंगा उसको। मैं तरस गया हूं वो 10 श्लोक और 10 चौपाई सुनने के लिए, क्योंकि अब हम लोग आ गए हैं, कोई बुराई नहीं है, अब हम लोग आ गए हैं हनी सिंह। मैं तो जानता नहीं, लेकिन नाम सुना, कोई गायक है, बहुत 3rd क्लास गाने गाता है, और जो पाश्चात्य ये जो संगीत है इसके ऊपर आ गए हैं। कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपने माता पिता को भूल करके दूसरे को अपने अंगीकार कर लेना, ये भी कोई स्वस्थ परंपरा नहीं है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुर्देवो भव, ये कौन सिखाएगा हमें? विजया जी ने बहुत अच्छा मेरा परिचय दिया। मैं आपके सामने एक सीक्रेट शेयर करना चाहता हूं। मैं कभी क्लास में भी फर्स्ट नहीं आया, लेकिन आईपीएस में फर्स्ट आया, ऑल इंडिया सर्विसेज में फर्स्ट आया, और जिंदगी में कभी देखा नहीं। अगर सबसे ज्यादा अलंकरण 3 बार गोली लगने के बाद आपके सामने जिंदा बैठा हूं तो मेरे स्वर्गीय माता पिता का आशीर्वाद था, उनका सुरक्षा कवच था। वरना गोली 2 इंच ऊपर होती तो फोटो और फूल लगने में समय नहीं लगता, और एक पदक और मिल जाता, मरणोपरांत वीर पदक, गैलेंट्री मेडल पोस्टमसली। एब्राहम लिंकन से किसी ने पूछा, आप इतने बढ़िया राष्ट्रपति हैं, इतना ओजस्वी आपका वक्तव्य होता है, आपका कारण क्या? पूर्वाभ्यास है, आपकी शिक्षा है? एब्राहम लिंकन ने कहा, नहीं, एक सीक्रेट है, मैं आपको बताता हूं, एक बहुत गहरा सत्य है, और वो सत्य ये है, मेरी बूढ़ी माता कोने में घर के बैठ के मेरे लिए रोज प्रार्थना करती है। उसके आंसू और उसका आशीर्वाद ने एब्राहम लिंकन को एब्राहम लिंकन बनाया है। नेपोलियन ने कहा था कि मुझे 5,000 माएं दे दो, मैं तुम्हें एक अच्छा राष्ट्र बना के दे दूंगा। 5,000 माएं। क्या कारण है? क्या कारण है कि जो हमारी धरोहर, जो घर में अपार सागर है विद्वता का, हम उसकी अपेक्षा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यही हमें बताएंगे संपत्ति और विपत्ति में क्या अंतर है, यही बताएंगे हमें अर्थ और अनर्थ में क्या अंतर है, यही हमें बताएंगे, क्योंकि हमें अब कुछ प्राप्त नहीं करना है, वैसे भी कभी कुछ प्राप्त नहीं करना था, आज हम कुछ दे सकेंगे तो हम धन्य होंगे। पुनः हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए बच्चों। आप याद करें, महाभारत काल में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो विदुर कम बोलने वाले थे, उन्होंने क्या कहा दुर्योधन से, अरे मूर्ख, यमराज को दावत मत दे। अंत तो गत्वा, जब गुरुजनों की, वरिष्ठ जनों की आज्ञा का पालन नहीं हुआ तो सत्यानाश हो गया कौरवों का, सत्यानाश हो गया कौरवों का। सुमति कुमति सबके उर रहे ही, सुमति और कुमति सबके हृदय में रहती है, लेकिन उस सुमति को पुष्पित पल्लवित करा करके ये संवर्धन माता पिता ही कर सकते हैं। और माता पिता को अगर हम दे देंगे तो आज जो हम लोग, हैरी पॉटर, कोई बुराई नहीं, हैरी पॉटर कोई बुराई नहीं, इनिड ब्लाइटन को पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, हृदय में अगर एक बार स्थान हम दे दें, आप सब श्रवण कुमार और श्रवण कुमारियां हैं, लेकिन हमारे वांग्मय में जो बोधि कथा है उसमें एक दुष्ट कुमार भी था,
जो श्रवण कुमार के सारे उल्टे गुण थे वो दुष्ट कुमार में था। कहीं ऐसा तो नहीं कि दुष्ट कुमार के कुछ डीएनए का अंश आज हमारे यहां आ गया है। हमारा युवा बहुत प्रतिभाशाली है, बड़ा आज्ञाकारी है, लेकिन जो मीना बाजार चारों तरफ जो भौतिकवाद, न्यूरोटिक, द न्यूरोटिक मैलिग्नेंट इन्फ्लुएंस ऑफ कंज्यूमरिज्म that has eaten up the sense of what is right and what is wrong. What to talk of children, grown-ups, they have poor sense of what is right and what is wrong. वो करते हैं जो नहीं करना चाहिए, वो खाते हैं जो नहीं खाना चाहिए, वो पीते हैं जो नहीं पीना चाहिए, वहां जाते हैं जहां नहीं जाना चाहिए, वो पढ़ते हैं जहां जो नहीं पढ़ना चाहिए। अंततो गत्वा, एक हमारे एक शायर है लखनऊ के, उन्होंने कहा है, छा गई जहनों में चर्बी मगरबी तहजीब की। ये उर्दू में, इसलिए मैं थोड़ा इसको हिंदी में कहता हूं कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस कुछ ऐसी आ गई कि उसकी चर्बी हमारे दिमागों पे आ गई। यूज एंड थ्रो की लिस्ट में मां बाप भी शामिल हो गए। छा गई जहनों में चर्बी मगरबी तहजीब की, यूज एंड थ्रो की लिस्ट में मां बाप भी शामिल हैं सब। ये ठीक है कि आज हमने गलत जगह दस्तक दे दी, हमारा तमाम सुख उधार के उपकरण पे आ चुका है। कल आर्चीज गैलरी जाएंगे, कल हम वैलेंटाइंस डे मनाएंगे, गर्लफ्रेंड ने मुस्कुरा दिया तो हम खुश हो जाएंगे, नहीं मुस्कुराएगी तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। प्यारे बच्चों, आपने अप्रतिम सौंदर्य यहां देखा है, वो चाहे राम कुमार जी हो, चाहे डॉक्टर इंदू हो, चाहे विजया जी हो, चाहे डॉक्टर भावना हो, चाहे हमारी भारत की आइकॉन श्रीमती शर्मा जी हो। लेकिन मैं बता रहा हूं, सौंदर्य का सूत्र, असली सौंदर्य आत्मा का विस्तार है। अगर आत्मा में विराटता है, वांग्मय है, आप इतने सुंदर होंगे, आयु कुछ भी हो, मेकअप हो ना हो, आपका सौंदर्य अप्रतिम होगा और उसकी सुगंध और उसके सौंदर्य की आभा हर जगह सर्वत्र विराजमान हो। और अगर ऐसा सौंदर्य है ब्यूटी पार्लर वाला, कोई बुराई नहीं, मैं निंदा नहीं करता हूं, लेकिन एक कड़वी बात जिसको ओशो ने कहा है, लाश के ऊपर भी मेकअप किया जाता है। ये वो सौंदर्य है जो सिर्फ स्किन डीप है और इसकी ऊपरी सतह, ये लाश का सौंदर्य है। आप सब जो यहाँ विभूति हैं, आपके सौंदर्य को नमन, आपके माता पिता को नमन, उनके चरणों में आपके कुल और वंश को प्रणाम, क्योंकि आज आपने अवकाश के दिन अगर इस महत्वपूर्ण बिंदु के लिए समय संसाधन दिए हैं, जरूर आपने, आपके माता पिता ने पुण्य किए होंगे कि आज आप यहाँ हैं, बुजुर्गों के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि आज हम सोचते हैं कि हमारा इसमें लाभ क्या है, की रिजल्ट एरिया क्या है, हमें क्या मिलेगा। तात्कालिक रूप से तो कुछ नहीं मिलेगा, तात्कालिक रूप से नुकसान ही नुकसान है। आपका समय गया, आपका संसाधन गया, आप नेटफ्लिक्स देख सकते थे, आप HBO देख सकते थे, आप पिकनिक पे जा सकते थे, उस सब का सत्यानाश करके आप एक यज्ञ में, जैसा डॉक्टर इंदू जी ने कहा, आप सबके अंदर वो ईश्वरीय अंश है कि आप अपनी पूर्णाहुति देने के लिए तत्पर हैं। लेकिन अगर इसको देखे, चाणक्य ने कहा था, दुर्बुद्धि और सुबुद्धि का परिणाम 40 साल में आता है। आज दिखाई ये पड़ता है कि बहुतों ने बहुत रिश्वत ली, बहुत दुराचार किया, बहुत वो सब कर्म किए जो नहीं करने चाहिए थे। लोग कहते हैं कि साहब ये तो देखिए कहां से कहां 2 साल में इनके पास मर्सिडीज गाड़ी हो गई, अट्टालिकाएं हो गई, ये शौकीनी करने इंग्लैंड और अमेरिका जाते हैं। ये वही है, चले बहुत पहुंचे कहीं नहीं। ये चले बहुत 40 साल के अंदर जो घर की वैभव संपदा थी वो भी चली जाती है। मैं ऐसे कितने लोगों के यहां जाता हूं, अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, अपार वैभव, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं, कईयों के पास तो अपने एयरक्राफ्ट भी हैं। यूरोप के कई शहरों में अट्टालिकाएं हैं, महलें हैं, लेकिन माता पिता के लिए कोई स्थान नहीं। तो उन्होंने पूछा, विक्रम कैसा लगा? मैंने कहा, बुरा मत मानना, आज जो तुम्हारे यहाँ म्यूजिक चल रहा है, डॉक्टर इंदू जी, उनके यहां भी पुराने गाने लगे थे। और गाने कौन से थे, जरा सुन लीजिए। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, तंग आ चुके हैं कश्मकशे जिंदगी से हम, ठुकरा न दें इस जिंदगी को कहीं बेखुदी में हम, यानी सुसाइडल टेंडेंसीज वाले। ये मुकेश के गम भरे गाने। सब कुछ होने के बाद अगर जीवन में रिक्तता है, अभाव है, कृपणता है, दरिद्रता है, तो उसका कारण क्या है कि आपने अपने कर्तव्य से विमुख हुए, माता पिता को स्थान नहीं दिया।
आपके घर में सबके बेडरूम से प्ले रूम्स है, लेकिन माता पिता के लिए स्थान नहीं है। मेरे लिए ऐसा मकान और ऐसी अट्टालिका शमशान घर से ज्यादा नहीं है। और आज नहीं तो कल इसका दुष्परिणाम, जैसे चाणक्य ने कहा था, ये भगवान की लाठी है, सुनाई नहीं पड़ती है, लेकिन इसकी पीड़ा दिखाई पड़ती है। आज जिनके माता पिता हैं, कभी कोई कटु बात कह दी हो, सेशन के बाद फोन करके क्षमा याचना कर लीजिएगा, धन्य हो जाएंगे। माता पिता की जिन्होंने सेवा की है, उनको मैंने कभी दुखी नहीं देखा आज तक, और जिन्होंने माता पिता का अपमान उपेक्षा की है, उनको मैंने कभी सुखी नहीं देखा है। कानून की बातें तो हम बहुत कर सकते हैं, लेकिन मेरा काम कानून और कानूनी मेरा जीवन है। सेक्शन 41 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007, इंदु जी ने इसकी व्याख्या की थी। हम कानून की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपकी बात कर रहे हैं। आपके हृदय, आपके कैलेंडर में, आपके रूटीन में। और मैं तो एक बात और कहूंगा, आपने कहा बातचीत कर लीजिए, पता नहीं क्यों इत्तेफाकन कल ही मैंने एक पुस्तक ली थी सिगमंड फ्राइड की, साइकोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ। इसमें वही बात जो डॉक्टर इंदु जी ने कही थी, प्रेम से बात कर लो, टोन अपनी थोड़ी हल्की कर लो। मैं जैसे बोल रहा हूं, जरा बात कर लो, जरा बात कर लो। टोन बदलता है तो अर्थ बदल जाता है। कम से कम अगर हम लाउड हैं, थोड़ा हल्के हो जाएं। अगर हम कुछ अपेक्षा करते हैं तो अपेक्षाएं न करके हम उनकी अपेक्षा के अनुरूप हम उतरने की कोशिश करें। ये वो अपार खजाना वैभव है जो दस्तक दे रहा है कि मुझे लूट लो। माता पिता बुजुर्ग कहने कि हमें लूट लो, हम तुम्हें देने के लिए हैं। ये सारा खजाना तुम्हारे लिए है। लेकिन यहां का जो संसार का मीना बाजार है, जो कंज्यूमर सोसाइटी के, कहां बुढ़ों के पास उनकी वही घिसा हुआ रिकॉर्ड सुनोगे। ये मेरे डायलॉग नहीं है, ये डायलॉग वो है जो मैं सुनता हूं। वही घिसा हुआ रिकॉर्ड जो 100 बार सुनने मुझे लाइनें रट गई अम्मा बाबू जी की। मुझे वही लाइनें हैं जो अम्मा बाबू रट गई, लेकिन वही सुनना पड़ता है। मैं ट्रैंक्विलाइजर खा के जाता हूं। अरे ट्रैंक्विलाइजर, तुम्हारे माता पिता ने ट्रैंक्विलाइजर खाया था जब तुम पलंग गंदी करते थे। तुम्हारे माँ बाप ने ट्रैंक्विलाइजर खाया था जब तुम बीमार थे तो रात भर पट्टी लगाते थे। आज आपको ट्रैंक्विलाइजर की जरूरत पड़ रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि अपने धर्म का पालन करें, अपने कर्तव्य को समझें। और जैसा विदुर ने कहा था, यमराज को दावत मत दें। आप धन्यता के लिए बने हैं, धन्य है। आप में दिव्यता है, दिव्यता को प्राप्त करें। ये समाज कहेगा चाहेगा। दिल्ली में इंग्लैंड से ज्यादा अंग्रेजी बोलने वाले हैं, ये कोई अहंकार नहीं है। अंग्रेजी बोलना कोई अहंकार नहीं, अच्छी बात है, आना चाहिए। लेकिन अंग्रेजी का ना आना माता पिता का दर्ज भगवान से कम नहीं हो जाता है। उनका दर्जा भगवान का था, है और रहेगा। मैंने कोई अपनी बात कही है तो उसके लिए करबद्ध क्षमा प्रार्थना हूं। आप सबको हृदय से आशीर्वाद। ये इस विद्वतापूर्ण वक्तव्य जो इंदु जी ने दिया है, राम कुमार जी ने दिया है, इसके ज्ञान और विज्ञान से आप सब मृत्युंजय बने। एक परामर्श और, अगर कभी कोई कटु बात कही है, फिर भी कह दीजिए माता पिता से। आई लव यू तो बहुत कहते हैं, आज माता पिता से आई लव यू कह दीजिए। एक बार फोन मिला के उनसे कह दीजिए, पापा मैं बहुत प्यार करता हूं, मम्मी बहुत प्यार करता हूं। थैंक यू। We love you, Papa. Dr. Vikram, we are truly moved, and yes, thank you for motivating us. Thank you for energizing us. Thank you for throwing light to all those who have joined, and I'm sure they are going to take some message at least from your speech. Thank you, sir. आपके पेरेंट्स डेफिनेटली बहुत ब्लेस्ड हैं आपको अपना बेटा पाके, आपके जैसा बेटा पाके। सर, एक क्वेश्चन हम, बिकॉज अभी क्वेश्चन आंसर सेशन वी आर ओपनिंग, एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बहुत वेरिड है। हमारी कॉलेज किस तरह से
कंट्रीब्यूट कर सकती है, कैसे फोकस कर सकते हैं हम? आप धन्य हैं कि आपने ये प्रश्न किया मेरी पुत्री। आपने हृदय में स्थान बना ले, सबसे पहला कदम वही है, और बाकी समझ लीजिए आगे मंगल ही मंगल है, कल्याण ही कल्याण है। आप जो कर रही हैं ये एक दिशा है और आगे की दशा है। आप एक बार संकल्प ले लें, कम से कम एक प्रण ले लें कि आज हम किसी बुजुर्ग से, माता पिता से कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे। कम से कम दिन में एक बार, महीने में एक बार, वर्ष में एक बार किसी बुजुर्ग को हम मुस्कुराएंगे, उसके मुस्कुराने के लिए हम उसको बाध्य करें, कोई ऐसा कृत्य करेंगे कि हम उसको मुस्कुरा दें। वातावरण थोड़ा भारी हो गया है, तो मैं आपको थोड़ा हल्का करना चाहूंगा। यही बात मैंने कहीं एक जगह कही थी, किसी बुजुर्ग की सेवा करेंगे, तो उन्होंने कहा आप सब सेवा करेंगे। तो अगले दिन जब बच्चे आए तो हमने कहा आपने सेवा की? जी हमने की। हमने कहा आपने क्या सेवा की? उनका कि एक बुजुर्ग महिला सड़क पार करना चाहती थी, हमने पार कराया। दूसरे से पूछा आपने क्या किया? उनका एक बुजुर्ग महिला सड़क पार करना चाहती थी, हमने सड़क पार कराया। जब 300 बच्चों ने कहा कि सड़क पार कराए तो मेरे मन में कुछ कुंठा हुई, ये है क्या 300 बच्चों ने एक बुजुर्ग महिला को सड़क पार कराई? तो जरा बताओ, पुलिस का आदमी हूं। उनका क्या अलग अलग महिला तो एक थी, वो सड़क पार करना चाहती थी। उनका नहीं, लेकिन हमने कहा कि अच्छा काम करता है तो हम लोग वैसे ही कि एक पार इस पार, दूसरा बच्चा इस पार से उस पार, फिर इस पार से उस पार, ये हमने सेवा की है। तो मैंने कहा भाई हे भगवान, कम से कम जरा बुद्धि लगा करके, वो वृद्ध महिला सड़क पार करना भी चाहती है, जबरदस्ती तुम लोगों ने 15 बार आर पार करा दिया उसको, कहीं ऐसा ना हो कि वो आईसीयू में चली गई हो। बहरहाल ये हमने कहा कि आप लोगों को बता दें, सेवा का भाव रखें, सेवा जाए। लेकिन जैसे डॉक्टर इंदु जी ने कहा, कौन क्या पसंद करता है, क्या हम कर सकते हैं। बुजुर्गों का सम्मान कर देना, केवल औपचारिकता नहीं जैसे कि पाश्चात्य जगत में होता है, फादर्स डे, मदर्स डे और ये ग्रैंडफादर्स डे, ये नहीं। एवरी डे इज पेरेंट्स डे, एवरी डे इज एल्डर्स डे, एवरी मोमेंट इज देयर। एक एक सांस उनके चरणों पे गिरवी है। जस्ट अ सेकेंड ना सर, आपको खड़े होके नमस्कार। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू सर। और सच में मुझे लगता है आपने सबको झिझोड़ दिया, जो कहीं भी गलती करते होंगे बड़ों से मिसबिहेव करके या इवन अननोइंगली मिसबिहेव करके। सो आई एम रियली ग्रेटफुल इंदु मैम आपको, राम सर, शीतल मैम और सर आपको खास, क्योंकि हमारे बच्चों को आई एम श्योर दे विल लर्न दिस एंड टेक विद देम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, वेरी ग्रेटफुल। मैम आपके चरणों में, आप उम्र में बहुत छोटी हैं, लेकिन आपके अंदर मातृ शक्ति है, मैं उसको प्रणाम करता हूं। थैंक यू विजय। सर एक प्रश्न था आपसे कि बच्चे आजकल माँ बाप की सुनते नहीं है जल्दी, मतलब कॉलेज वाले भी जो बच्चे हैं जल्दी सुनते नहीं है बच्चे, और मतलब कुछ अच्छा भी सिखाते हैं तो हमेशा उनको यही लगता है कि माँ बाप को कुछ पता नहीं है, हमें ही सबसे ज्यादा पता है ना। तो सर किस तरह से, मतलब बच्चों को किस तरह से उसको समझाना चाहिए, क्या करना चाहिए? ये सवाल इतना गूढ़ है, इसके कई आयाम हैं। मैं आपको केवल 3 वाक्यों में इसके बारे में बताता हूं, कभी इसके लिए तो अलग सेशन होगा। कि बच्चे हमारे जनरेशन में मैम कोई पूछ नहीं सकता था कि क्यों अम्मा, क्यों माताजी, क्यों आई, क्यों। संवाद पिताजी से होता नहीं था, माताजी ही फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड होती थी। और अगर मैं बता दूं, मैंने भगवान के दर्शन नहीं किए, मेरे माता पिता भगवान हैं। जब मैं 17 साल का हुआ, यूनिवर्सिटी जाने लगा, तो मेरी माता ने कहा विक्रम तुमसे जरूरी बात करनी है। कहा जी अम्मा बताएं। उनका बेटा ये शरीफों का घर है, अगर कभी शराब पीना तो हम समझेंगे हमारे एक बेटा नहीं हुआ, घर लौट के मत आना। अगर किसी लड़की से अभद्र व्यवहार करने में तुम थाने चौकी जाओ तो तुम्हारे पिताजी कभी तुम्हें छुड़ाने नहीं जाएंगे, तब भी घर लौट के मत आना, और तुम्हें सारी विरासत से हम तुम्हें बेदखल कर देंगे। और ये 3 लाइन का इश्तेहार है। विक्रम सिंह पुत्र ठाकुर मार्कंडे सिंह, उसकी सोहबत बिगड़ चुकी है, हम उसकी पूरी संपत्ति विरासत से बेदखल करते हैं। ये शरीफों का घर है, सामान्यतः 6 बजे तक शरीफों के लड़के घर आ जाते हैं। लेकिन अगर किसी कारण से पार्टी में किसी स्टडी के लिए तुम बाहर हो तो तुम्हारे माता पिता को जानने का अधिकार है, तुम कहां हो, किसके साथ हो, क्या कर रहे हो, पूरी छूट है तुम्हें।
लेकिन आज हमने क्या देखा, मेरे माता पिता ने अगर मुझसे कहा कि तुम 100 मीटर चलो तो खुद मैराथन दौड़ के आते थे। अगर उन्होंने कहा कि सिनेमा पे प्रतिबंध है तो उन्होंने खुद इससे परहेज किया। अगर उन्होंने खुद कहा कि इन सब चीजों से आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम का बड़ा शौक था, कम खाओ, तो उन्होंने 6 महीने आइसक्रीम त्याग दी। जितना मैं कर सकता था एक 1:10 के अनुपात में, पहले जब 10 कर दिया तब उन्होंने कहा कि मेरे अंदर नैतिक साहस नहीं था कि मैं भगवान को देख रहा हूं, वैसे मैं देखता था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे पेरेंट्स आज भी उनमें कोई कमी है, लेकिन मैं पेरेंटिंग के ऊपर एक किताब ले आया था किसी अपने युवा के देने के लिए, तो उसमें एक चैप्टर था, मैं उससे पूरी तरीके से, और इंग्लैंड का पब्लिकेशन था, उसमें लिखा था जब बच्चा 6 साल का हो जाए तो उसको ये बताएं कि आपके कमरे में आने के पहले नॉक करके आया करे और आपकी प्राइवेसी का सम्मान करे। ये हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता के बिल्कुल विपरीत है। माता पिता संतान के लिए है, संतान माता पिता के लिए है। फिजिकल दरवाजा छोड़िए, दिल के दरवाजे माता पिता के लिए, बच्चों के लिए हमेशा खुले थे, हैं और रहेंगे। लेकिन अगर कोई दरार वहां है तो संवाद में एक शून्यता, एक रिक्तता आ जाती है। एक बार कलेजे से लगा के अपने बच्चे को, बेटा मैं तुम्हारे हित की बात कर रही हूं, एक बार सोच लो, मुझे तुमसे कुछ प्राप्त थोड़ी करना। मेरी माता ने कहा, विक्रम तुम बड़े हो जाना, हेलीकॉप्टर खरीद लेना और मुझे मत बैठाना, लेकिन इस घर में वही होगा जो तुम्हारे हक में अच्छा है। एक बार प्रेम से, और इसको एक बार नहीं, लेकिन हमको ये देखना, हम 7 भाई बहन थे, आज हमारे बच्चों का थ्रेशोल्ड बहुत छोटा, बड़ा कम हो गया है। हम लोगों की माताजी ने, मेरी माताजी ने मेरी धुलाई की है। जब मैं आईपीएस में जा रहा था, सगाई के एक दिन पहले, मेरी एंगेजमेंट के एक दिन पहले मेरी माताजी ने धुलाई की। आज किसी बच्चे से टोक करके देखिए, वो तुरंत या तो नस काटने की कोशिश करेगा या फंदे में लटेंगे। आज मेंटल फ्रेजिलिटी बहुत बढ़ गई। हम लोगों की थिक स्किन इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। हम लोगों की बड़ी थिक स्किन थी। जिस दिन माताजी धुलाई करती थी, हम भाई कहते आज विक्रम की काफी सेवा हुई है। लेकिन यह है कि बच्चों के अगर परसिस्टेंट, एफेक्शनेटली, लेकिन बिना हार्श हुए, बिना, उनसे भी मैं कहूंगा बिना ऊंची आवाज में, और उस तरीके से अगर हम कहेंगे, निसंदेह ऐसा बच्चा मैंने नहीं देखा जिससे हमें सिखाना हो और हमारी बात बच्चे ने उसका पालन नहीं किया। समय जरूर लगेगा, लेकिन पालन बच्चे जरूर करेंगे। उनको संतुष्ट करना पड़ता है कि उनके हक के लिए है। असीमा, हम देखते हैं कि हमारे पड़ोस में या जान पहचान में जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनको तकलीफ है, उनके घर में तकलीफ है, तो ना तो वो बोल पाते हैं, ना ही कुछ कह पाते हैं, और अगर कोई दूसरा बताए, बोले अगर घर में, तो भी मतलब दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। मतलब घर वाले बोलते हैं कि आपको क्या तकलीफ है, कि आपसे उन्होंने कहा, और बुजुर्ग बोलते नहीं है, डर के मारे नहीं बोलते हैं। तो ये चीज कैसे, मतलब किस तरह से हम इसको हैंडल कर सकते हैं जब आप देख रहे हैं सामने? जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। और अब चूंकि कानूनी मान्यता मिल गई है बुजुर्गों के प्रति व्यवहार को लेकर के, मैं अभी तो नहीं कहूंगा, पहले तो इंदू जी को फोन कीजिए, और उसके बाद अगर आप बहुत दूर हैं इंदू जी से, स्थानीय थाने की भी जिम्मेदारी कि बिना अपना नाम बताए, इस बात की गोपनीयता रखते हुए पुलिस अधिकारियों से बात करें कि आपकी, क्योंकि आप एक जगह स्थान पर निवास कर रही हैं, आप नहीं चाहेंगे कोई कटुता, कोई शत्रुता उत्पन्न हो, लेकिन पुलिस को सूचित करना आपका काम है, बाकी का काम पुलिस का है। और मैं समझता हूं कि ऐसा थाना, ऐसा जनपद ढूंढना मुश्किल है जहां आपकी शिकायत पर बुजुर्गों के बारे में कार्रवाई सकारात्मक और आपके संतोष के हिसाब से न हो। तो मेरा परामर्श होगा कि अब तो कानून बन गया है, ये पुलिस की जिम्मेदारी है, शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है कि बुजुर्गों का सम्मान और रक्षा को सुनिश्चित करवाएं। अगर संतान नहीं कर रही है, कितने केस अभी पुलिस कमिश्नर कानपुर ने किया था कि बच्चों ने अपने माता पिता को घर से बाहर कर दिया। पुलिस कमिश्नर असीम अरुण, जो कि मेरे पुत्र की तरह से हैं, उनके पिताजी श्रीराम अरुण मेरे डीजीपी थे, वो खुद गए, जा करके उनको बुजुर्ग लिया कि अगर यूट्यूब पे आप जाएं, पुलिस कमिश्नर कानपुर ने किस तरीके से माता पिता को घर के अंदर दाखिल किया और बच्चों को हिदायत दी, वो भी यूट्यूब पे है कि आपके हक में ये होगा, माता पिता का सम्मान से असम्मान इनको रखें, और अगर नहीं रखेंगे तो कानूनी पहलू ये भी है कि आपके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हो सकती है। सर क्या होता है कि यहाँ पर घर में, मतलब जैसे मैं जो पेरेंट्स बात हैं, कहना वो चाहूंगी डर यहीं के पर। मारे भी बोलते नहीं है कि मतलब हम, अगेन वही बात आती है कि हम किसी पर निर्भर है, ये हमें निकाल देंगे घर से, हमें छोड़ देंगे। तो मतलब जो तकलीफ होती है वो सहते जाते हैं, वो लोग बोलते नहीं है। ये भी एक चीज है। जी जी, आपका कहना, मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगी जी। सर, असीम अरुण जी के पास जो कॉल गई थी वो हमारी टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर आई थी,
मैंने माता पिता को बार बार कन्विंस किया कि आप जाएं, क्योंकि असीम अरुण जी सवेरा कार्यक्रम में हमारी संस्था के साथ हम लोगों ने यूपी पुलिस के साथ मिलकर के वो कार्यक्रम शुरू किया था सर। तो जब माता पिता को बिल्कुल ट्रस्ट हो गया कि पुलिस करेगी तो सर गए थे। सर दूसरा जो मैम ने पूछा है, हम पुलिस और किसी को ना बता करके जैसा हम लोग कर रहे हैं, हम अपने एक्सपेंसेस पर अपने ही घर में या किसी दोस्त के घर में एक डे केयर सेंटर शुरू कर दें। जो बुजुर्ग आपको अकेले अपने घर में दिख रहे हैं या जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, वहां जाकर के आप ये बताएंगे, अरे आज हमारे यहाँ एक छोटा सा गेट टुगेदर है सीनियर सिटीजन्स का, और अगर हमने इसको डेली में ले लिया, आप मुझ पर ट्रस्ट करिए, वहां ना पुलिस की जरूरत है, क्योंकि उनको तो ऐसा ही घर आंगन चाहिए जहां वो हम उम्र लोगों के साथ बैठ सकें, अपनी पसंद के प्रोग्राम देख सके और अपने जमाने की बात करें। अगर इसमें कुछ युवा आ जाते हैं तो धीमे धीमे मोहल्लों में अगर दादा दादी क्लब छोटे छोटे रूप में आ जाएं, तो सर डे केयर सेंटर आ जाए, तो घरों में ये जो डोमेस्टिक वायलेंस होती है वो कुछ समय के लिए हम उनको खुश कर सकते हैं, आत्मिक रूप से उनको शांत कर सकते हैं। सर सॉरी मैंने डिस्टर्ब किया बीच में। डिस्टर्ब नहीं, आपने बहुत अच्छा आयाम दिया और हम सब के लिए एक दिशा बोध दिया। और ये सब अगर जो कर सके, अपने जो सीमित संसाधन है और जो भी सहज और सरल कर सके जरूर करें। बहुत अच्छा। और राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर डॉक्टर इंदू जी। ठीक है।